آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ کویت، والہانہ استقبال۔ دہلی فسادات کیس، 2 افراد بری، عدالت نے کی پولیس کی سرزنش۔ پشپا 2 بھگدڑ واقعے کی اسمبلی میں گونج، اکبر الدین اویسی کے سوال پر چیف منسٹر کا جواب۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ، 180 مسافرین نے لی راحت کی سانس۔ اور ضلع نلگونڈا میں دل خراش سڑک حادثہ، 3 افراد جاں بحق۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ غزہ کے مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی آباد کاروں نے دھاوا بول دیا، جس کے دوران مسجد کے داخلی دروازے کو بھی آگ لگا دی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق غزہ کے مغربی کنارے پر واقع سلفیت کے علاقے کی مسجد پر غیر قانونی اسرائیلی آباد کاروں کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ اس دوران اسرائیلی آباد کاروں نے مسجد کے داخلی دروازے کو آگ لگاتے ہوئے توڑ پھوڑ کی اور مسجد کی دیواروں پر اسپرے پینٹ میں کلچر اور دھمکی آمیز نعرے لکھے۔ یہودی آباد کاروں کی جانب سے مسجد کی دیوار پر عربوں کی موت اور بدلہ جیسے ناپاک نعرے درج کیے گئے۔ روسی ہوابازی اور توپ خانے نے یوکرین کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے آپریشنز اور فوجی ہوا اڈوں کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ آپریشنل اور ٹیکنیکل ہوائی جہاز، بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیاں، میزائل فورسز اور روسی مسلح افواج کے توپ خانے نے توانائی کی تنصیبات، فوجی ہوائی اڈوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے کی سہ پہر کویت پہنچے۔ وہ 43 سالوں میں خلیج ملک کا دورہ کرنے والے پہلے ہندوستانی وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم کا ان کی آمد پر شاندار استقبال کیا گیا، کیونکہ انہوں نے کویت کے امیر کی دعوت پر اپنے تاریخی 2 روزہ دورے کا آغاز کیا، جس سے ہندوستان کے قریبی تعلقات کی توقع ہے۔ نریندر مودی کو بایان محل میں رسمی گارڈ آف آنر دیا جائے گا، جس کے بعد وہ کویت کے امیر اور کویت کے ولی عہد سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو اپنی 5 روزہ سرمائی تعطیلات ختم کرنے کے بعد ہفتے کو نئی دہلی واپس ہو گئی۔ شہر کے مضافات میں ایئر فورس اسٹیشن حکیم پیٹ پر گورنر جشنو دیو ورما، مرکزی وزیر کشن ریڈی، ریاستی وزیر سیتا کا اور دیگر شخصیات نے انہیں وداع کیا۔ 5 روزہ قیام کے دوران صدر جمہوریہ نے مختلف پروگرامز بشمول ایمس منگل گری آندھرا پردیش کی کانوکیشن تقریب کے علاوہ راشٹرپتی نیلم میں مختلف اقدامات کا آغاز کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ آندھرا پردیش حکومت نے ہفتے کے روز وزراء کے گروپ کی تشکیل کا اعلان کیا تاکہ ریاستوں میں خواتین کے لیے مفت بس سفر کا مطالعہ کیا جائے، جہاں یہ پہلے سے نافذ ہے، تاکہ ریاست کے لیے ایک موزوں ماڈل تیار کیا جا سکے۔ 3 رکنی کمیٹی کی سربراہی وزیر ٹرانسپورٹ منڈی پی رام پرساد ریڈی کریں گے۔ کمیٹی کی تشکیل پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس کی ریاستی صدر وائی شرمیلا نے کہا کہ ٹی ڈی پی کی زیر قیادت مخلوط حکومت خواتین کے لیے مفت بس سفر کے نفاذ میں مخلص نہیں ہے اور تاخیری حربے اپنا رہی ہے۔ کانگریس نے آج کہا ہے کہ پارٹی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے اعزاز میں ملک بھر میں پروگرامز منعقد کرے گی اور ملک گیر سطح پر امبیڈکر سمان مارچ نکالا جائے گا۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری کے سی وینو گوپال نے آج جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ پارٹی اگلے ہفتے ملک بھر میں امبیڈکر سمان ہفتہ منائے گی اور 24 دسمبر کو ملک بھر میں مارچ نکالا جائے گا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر نے کہا، ہماری تحریک وزیر داخلہ امت شاہ کے استعفیٰ کے مطالبہ کرتی رہے گی۔ ہم ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی وراثت کی حفاظت کے لیے ان کے خلاف لڑیں گے۔ All our MPs, both Lok Sabha and Rajya Sabha, along with CWC members, will be addressing press conferences, 150 press conferences across the country on the 22nd and the 23rd of December, highlighting the deliberate attack on Baba Saheb Bhim Rao Ambedkar ji and the Constitution of India.
The attack came from none other than the Home Minister of India, the second most powerful man in this country, Mr. Amit Shah. He is unrepentant, the Prime Minister is unrepentant, we have demanded his resignation, and this demand will be reiterated in these 150 press conferences across the country. On the 24th of December, at every district headquarter, there will be a Baba Saheb Ambedkar Samman March that will be carried out by our party leaders and workers. Again, we'll reiterate our demand. We'll give a memorandum to the collector, through the collector to the President of India, and we'll be garlanding the statues of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar ji in every district headquarters. अरमान खान नामी ट्रक ड्राइवर को बादशाह पसंद गाय के मुहाफिजों ने गाड़ी में बैलों को ले जाने पर वहशियाना हमला किया। ये वाकया हरियाणा के नूह इलाके में 18 दिसंबर को पेश आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमले का एक वीडियो मंजरेआम पर आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि इंतहा पसंद ग्रुप अरमान से पूछगछ के दौरान उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। हमलावरों ने अरमान को मारा पीटा और बालों से घसीटते हुए उसे बार बार गाँव हमारी माता है और बैल हमारा बाप के नारे लगाने पर मजबूर किया। ये वाकया हिंदुस्तान में गाय की हिफाजत से वाबस्ता तशद्दुद के वसी नमूने का हिस्सा है, जिसमें बुनियादी तौर पर मुस्लिम तबके को निशाना बनाया जा रहा है। बोल हमारी बैल हमारा बाप। माता जय श्री राम भाई, हम खड़े हैं तावड़ू केएमपी पे। आज फिर एक बड़ा धमाका भाई है ओ लगना। क्या नाम है? अरमान खान नाम है का। 2 बैल लेकर जाना था ऑनलाइन। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में अजमेर जयपुर कौमी शाहर पर गैस टैंकर में आग लगने के बाद पेश आने वाले हादसे में 2 और शदीद जख्मी अफराद की मौत के साथ ही मरने वालों की तादाद बढ़कर 14 हो गई, जबकि 35 अफराद जख्मी बताए गए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक शदीद जख्मी राजकुमार और गोविंद ने जुमा की रात दम तोड़ दिया, जिससे हलाक होने वालों की तादाद 14 तक पहुंच गई। हादसे में 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि शदीद जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। मुंबई के साहिर पर 18 दिसंबर को सैयाहों की कश्ती और हिंदुस्तानी बहरिया की कश्ती के उलटने के बाद लापता होने वाले 7 साला लड़की की नाश हफ्ते को दस्तयाब हुई। इस हादसे में मरने वालों की तादाद 15 तक पहुंच गई। सरकारी जराये के मुताबिक लड़की की शिनाख्त गोवा के रहने वाले जोहन पठान के तौर पर की गई है, जिसकी मां इस हादसे में फौत हो गई थी। नेवल पुलिस ने इसकी नाश को सरकारी जेजे हॉस्पिटल मुंतकिल किया। गुज़श्ता 48 घंटों में हिंदुस्तानी बहरिया और कोस्ट गार्ड के 9 जहाजों पर सवार 50 एहलकारों की एक टीम मुंबई के साहिल के करीब पानी में लड़के की नाश तलाश कर रही थी, जो डूबने वाली कश्ती से लापता आखिरी मुसाफिर था। पंजाब मोहाली के गांव सोहाना में आज एक 4 मंजिला इमारत अचानक मुनहदम हो गई, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। वाक़े के बाद मुकामी लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए और राहत और बचाव कार्य के काम में हिस्सा लिया। सिक्योरिटी हुक्काम और मुकामी इंतजामिया मौके पर पहुंच गए और इमदादी कामों में मसरूफ बताए गए हैं। ये इमारत हाल ही में तामीर की गई थी और इसमें एक रॉयल जिम भी था। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वाक़े के वक्त लोग जिम में वर्जिश कर रहे थे, जिसकी वजह से जान माल के नुकसान का खदशा है। दिल्ली के एडिशनल सेशन जज ने आज एक अहम फैसले में पुराना मुस्तफा इलाके से ताल्लुक रखने वाले फिरोज खान उर्फ पप्पू और मोहम्मद अनवर को दिल्ली फसादात 2020 के मुकदमे में तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। अदालत ने शवाहिद की अदम मौजूदगी की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया और पुलिस ओहदेदारान की सख्त सरजनिश करते हुए कहा कि इन्हें पुख्ता और गैर पुख्ता शवाहिद की समझबूझ हासिल करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को असेंबली में రైతు भरोसा स्कीम पर हुए मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए इल्जाम लगाया
कि बीआरएस दौर में रैतु बंधु स्कीम का गलत इस्तेमाल करते हुए 22,600 करोड़ रुपए की रकम गैर कास्ट अराजी के लिए अलॉट की गई। उन्होंने असेंबली में रैतु भरोसा स्कीम पर मुख्तसर मुबाहिस के दौरान स्कीम के असल मकसद से इन्हिराफ पर साबिक बीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस स्कीम का मकसद सरगर्म किसानों को काश्त के लिए माली मदद फराहम करना था। उन्होंने निशान नहीं करते हुए कहा कि रैतु बंधु के तहत फंड्स गैर काश्त अराजियात के लिए तकसीम किए गए, जिनमें लेआउट सड़कों जैसे राजीव राहदारी श्रीशैलम हाईवे भी शामिल है। నిర్లక్ష్యపూరితంగానో లేకపోతే ఏమాత్రం బాధ్యత లేకుండా బాధ్యతారహితంగా వ్యవహరించడం వల్ల సరాసరి ప్రభుత్వానికి అందుతున్న ఒక అంచనా, మేము వచ్చిన తర్వాత 7,625 కోట్లు రైతు భరోసా పథకంలో రైతుల ఖాతాలు వేసినవి తీసేస్తే అంతకంటే ముందు 72,816 కోట్లు గత ప్రభుత్వం రైతులకు రైతు బంధు పథకంలో వేసిండ్రు అధ్యక్ష. అందులో ఒక అంచనా సాగులో లేని భూములకు 22,606 కోట్ల రూపాయలు, సాగులో లేని భూములకు రాళ్లకు రప్పలకు గుట్టలకు రోడ్లకు లేకపోతే పరిశ్రమలుగా రూపాంతరం చెందిన లేఅవుట్లై రియల్ ఎస్టేట్లో ఎకరాలను గజాలుగా మార్చి గజాలను లేఅవుట్లు చేసి లేఅవుట్ల ద్వారా ఇండ్లు అమ్ముకొని కాలనీలు వెలిసిన వాళ్ళకు కూడా ఈరోజు రైతు బంధు వచ్చింది. దాంతో 72,000 కోట్లలో 22,000 కోట్లు దాదాపుగా ఆయాచిత లబ్ధి అనర్హులకు చేరిందని ఒక అంచనా అధ్యక్ష. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की संध्या थिएटर में पुष्पा 2 फिल्म की नुमाइश के दौरान भगदड़ के वाक़े पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर तासुफ का इजहार किया और ख्वाहिश की कि गैर इंसानी रवैया अख्तियार न किया जाए। कायदे मजलिस मुक़ल्लना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से असेंबली में इस मसले पर उठाए गए सवाल पर इजहार ख्याल करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का रवैया गैर इंसानी है, क्योंकि किसी ने भी इस भगदड़ में रेवती नामे खातून की मौत और उसके 10 साला बेटे की इस वाक़े के 11 दिन बाद भी हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी की जद्दोजहद के बारे में रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि इजाजत न होने के बावजूद इस फिल्म के प्रीमियर शो में हीरो पहुंच गए। उन्होंने कवायद की खिलाफ वर्जी की। फिल्म हीरो के रवैये का सवाल उठाते हुए वजीर आला ने कहा कि भगदड़ के वाक़े और खातून की मौत के बावजूद उन्होंने थिएटर में फिल्म देखने को तरजीह दी। ఈ సినీ ప్రముఖులు ఒక్క రోజు కోసం పోలీస్ స్టేషన్ పోయిన ఇంటికాడ క్యూ కట్టి ప్రభుత్వాన్ని తిడుతున్నారు, నన్ను తిడుతున్నారు, అతన్ని పరామర్శిస్తున్నారు. ఏమైంది అధ్యక్ష? అతను కాలు పోయిందా, కన్ను పోయిందా, చేయి పోయిందా, ఏమైనా కిడ్నీలు దెబ్బతిన్నా, ఏమైంది? అతన్ని ఇంతమంది సినీ ప్రముఖులు పరామర్శించారు, కలిసిండ్రు, అభినందించారు. కానీ ఆ పిల్లగాన్ని కనీసమన్నా పరామర్శించడానికి సినీ ప్రముఖులు ముందుకు రాలేదంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రముఖులు ఏం ఆలోచన చేస్తుండ్రో, ఏం కోరుకుంటుండ్రో నాకైతే తెలియదు. लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए? क्योंकि एक मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। सर इंसानियत कहां है बताइए? सर I also go for public meetings sir where thousands of people come. I make sure that there is no stampede sir. I make sure that the security around me doesn't push the people so that nobody comes under the stampede sir. I went for the Maharashtra election, thousands and lakhs of people were there sir, and I made sure that nobody is pushed.
Sir, I remember, sir, once my security official, by protecting me, his cap had fallen down. He had to do his duty, he was protecting me. So I went and I picked up his cap, sir. But here you see, sir, one lady dies, two small children are under stampede, one is under coma, and that gentleman doesn't even bother to go and ask and see, sir, at that moment, and goes waving like that. If I am wrong, sir, please correct me, sir. If I am wrong, please correct me, sir. This is what is happening, sir. बीआरएस के दौर में रियासत में 24 घंटे बरकी की सरबराही पर तेलंगाना असेंबली में आज रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और बीआरएस के रुकने असेंबली और पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव के दरमियान गर्मागर्म मुबाहिस हुए। ऐवान में రైతు भरोसा स्कीम पर मुख्तसर मुबाहिस के दौरान कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने तनकीदी रिमार्क्स करते हुए कहा कि बीआरएस दौर में सब स्टेशन लॉग बुक्स में बरकी की 10 घंटे सप्लाई को ही रिकॉर्ड किया गया। इन्होंने तारक रामाराव को चैलेंज किया कि अपने इस बयान से दस्तबरदार हो जाएं, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनकी हुकूमत ने 24 घंटे बरकी फराहम की। इस पर शदीद रद्दमल जाहिर करते हुए केटीआर ने असेंबली को गुमराह करने का वज़ीर मौसूफ पर इल्जाम लगाया। నేను వెంకటరెడ్డి గారిని అడుగుతున్నా, ఈడికెళ్ళి మీ సభ వాయిదా వేయండి అధ్యక్ష, బస్సులు అందరం పోదాం, నల్గొండ జిల్లాకే పోదాం. ఈ రోజు ఏ ఒక్క లాగ్ బుక్ లోనన్నా 24 గంటల కరెంట్ వస్తున్నట్టు చూపెడితే మేము మొత్తం శాసనసభాపక్షం రాజీనామా చేస్తామని చెప్పి నేను ఆయన అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఆపరేటర్తో నేను ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని ఎన్ని గంటలు వస్తున్నాయంటే 10-11 గంటలు సార్, రికార్డు ఉంది సార్, నేను పంపిస్తాను మీకు. మ్యాక్సిమం అంటే 14 గంటలు, అందులో 5-6 సార్లు పోతుంది కరెంట్ అని ఐలై అనే ఆపరేటర్ రిటైల్ లైన్మెన్ని మళ్ళీ వీలు పెట్టుకున్నాం. గతంలో రిటైల్ లైన్మెన్ అయిన తర్వాత ఐటీఐ చేసిన వాళ్ళని పెట్టేది ఎక్స్పీరియన్స్ లైన్మెన్. ఆయన చెప్పిన రికార్డు పంపిస్తాను ఒకటి ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే సబ్జెక్టు కరెక్షన్, ఎందుకంటే వారు మిస్గైడ్ చేస్తుంది తెలంగాణ ప్రజలు. 24 గంటలు ఎప్పుడు ఇయ్యలే, 5 ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా, 5 ఏళ్ళు ఎంపీగా ఉన్నా, 1000 గ్రామాలు తిరిగినా దాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవాలి వాళ్ళు. 24 గంటలే ఆ లాగ్ బుక్స్ సాయంత్రం వరకు ఆదిలాబాదు, నల్గొండ, అలంపూర్కి వెళ్ళి రాత్రి వరకల్లా మొత్తం తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్లో ఓ లాకర్లో పెట్టి దాల విషయం. ఎందుకంటే దాన్ని ప్రూవ్ అవుతుంది అధ్యక్ష. నేను వీడియో మీకు పంపిస్తా, మీరు వీడియో ప్లే చేయండి అసెంబ్లీలో. అందుకనే దయచేసి గౌరవ సభ్యులకు మీ మీద గౌరవం ఉన్నది, మీరు దాన్ని విత్డ్రా చేసుకోండి. రెండోది అధ్యక్ష, महकूम अक़लियती बहबूद के ज़ेर इंतज़ाम काम करने वाले तेलंगाना माइनॉरिटीज़ स्टडीज सर्किल हैदराबाद में मुख्तलिफ ज़ुमरों में रियासती और मरकजी सतह के तक़रीरात बशमूल ग्रुप 4, 3, 2, 1, RRB, SSC, बैंकिंग वगैरह के लिए अक़लियती उम्मीदवारों को 4 माह के बेसिक फाउंडेशन कोर्स की मुफ्त कोचिंग फराहम करने का फैसला किया है। डायरेक्टर स्टडीज सर्किल ने हफ्ते को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए इतला दी कि तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट उम्मीदवार इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2025 मुकर्रर की गई है। जिले नलगोंडा में कंडामल्लपल्ली चौराहा पर रोनुमा वाक़े में 3 अफराद उस वक्त जाँ बहक हो गए जब एक डीसीएम वैन ने इनको टक्कर दे दी, जिनमें एक खातून भी शामिल है। यह हादसा देवरकुंडा टाउन के मज़ाफ़ात में वाक़े दरगाह हजरत कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ बड़ी दरगाह के उर्स के मौके पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक डीसीएम वैन ड्राइवर के काबू के बाहर हो गए और वहां ठहरे हुए अफराद को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। महरूकीन की शनाख्त 52 साल अब्दुल कादर साकिन मेडीपुर, 19 साल हाजी साकिन ताड़कोल और 22 साल नबीना साकिन इरोरम की हैसियत से की गई है। इस हादसे में मोहम्मद अनवर नामी शख्स जख्मी भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद के शम्स आबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की। चेन्नई से पुणे जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे में तकनीकी खराबी महसूस होने के बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता कायम करते हुए तैयारे को लैंडिंग करने की इजाजत देने की ख्वाहिश की। इसे इजाजत दे दी गई। पायलट की जानिब से तैयारे को बाहिफाज़त लैंड करवाए जाने पर बड़ा हादसा टल गया। तैयारे में 180 मुसाफिर सवार थे। शहर हैदराबाद के गच्चीबौली के APHB कॉलोनी में एक मशहूर रेस्टोरेंट में लिफ्ट गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने पुलिस को बताया कि वाक़या उस वक्त पेश आया
जब लिफ्ट का ट्रैक्शन केबल अचानक टूट गया जिससे लिफ्ट गिर गई। इस वाक़े में एक शख्स का पैर शदीद जख्मी हुआ जबकि 3 अफराद मामूली जख्मी बताए गए हैं। इस मामले का ताख़ीर से इंकशाफ हुआ। शहर हैदराबाद के हाईटेक सिटी इलाके के करीब मादापुर में वाक़ एक IT कंपनी में हफ्ते की सुबह आग लग गई। एक इमारत की 5वीं मंजिल पर वाक़ कंपनी में ये आग लगी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहदेदार मौके पर पहुंच गए। इस वाक़े के नतीजे में मुकामी अफराद में खौफ देखा गया। इस वाक़े में किसी की जानी नुकसान या मौत की कोई इत्तला नहीं मिली और न ही किसी जख्मी होने की इत्तला है। मुलाजिमत पर बहाल करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा करते हुए एक साबिक होमगार्ड हैदराबाद के LB स्टेडियम में फ्लड लाइट टावर पर चढ़ गया। आंजरीन नामी इस साबिक होमगार्ड ने दावा किया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने पर इसे 250 दीगर होमगार्ड्स के साथ मुलाजिमत से बरतरफ किया गया था। उस वक्त की हुकूमत ने तहरीक को दबाने के लिए कदम उठाया था। आंजरीन ने कहा कि हालिया असम्बली इंतखाबात के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने होमगार्ड को दोबारा खिदमत पर बहाल करने का वादा किया था। ताहम रियासत में कांग्रेस की हुकूमत को बरसर इख्तियार आए 1 साल गुजर गया लेकिन चीफ मिनिस्टर अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा कुवैत, वालिहाना इस्तकबाल। दिल्ली फसादात केस, 2 अफराद बरी, अदालत ने की पुलिस की सरजनिश। पुष्पा 2 भगदड़ वाक़े की असेंबली में गूंज, अकबरुद्दीन ओवैसी के सवाल पर चीफ मिनिस्टर का जवाब। शम्स-आबाद एयरपोर्ट पर तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग, 180 मुसाफिरीन ने ली राहत की सांस। और जिले नलगोंडा में दिल खराज सड़क हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।